हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4, द कॉलोनिकल ईरा इन इंडिया। सो इसमें सबसे पहले जो आपकी हर बार एक सेइंग या जो भी चीज़ होती है वो बताई गई है। नियरली 2 centuries अगो द अर्ली ब्रिटेन इन बंगाल एंड द सिस्टर प्रेसिडेंसी रिगार्डेड द लैंड एंड द पीपल एज फेयर गेम फॉर प्लंडर। सो 2 शताब्दियाँ यानी कि 2 centuries जो बिफोर है, जब ब्रिटिश जो स्टार्टिंग में बंगाल में आए थे और जो बाकी प्रेसिडेंसियाँ थी वो भूमि वगैरह और लोगों का लूट वगैरह जो उस टाइम पे ज़्यादा चल रहा था अंडर द लेटर ब्रिटन्स एज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और बाद में भी जो रहे थे, जो मतलब ब्रिटिश का जो बाद का टाइम था, द प्लंडर इज प्रोसीडिंग फार मोर आउटरेजियसली टुडे देन एट एनी प्रीसीडिंग पीरियड। अब इस टाइम पर भी जो लूट थी, जो लोगों के साथ जो चीज़ें हो रही थी, ओप्रेस किया जा रहा था उन्हें, उनके साथ जो क्रुएल्टी हो रही थी वो पहले से भी ज़्यादा थी। मॉडर्न इंग्लैंड हैज़ बीन मेड ग्रेट बाय इंडियन वेल्थ। अब ये जो इंग्लैंड है, जो आधुनिक इंग्लैंड बोला जाता है, मॉडर्न इंग्लैंड, वो इंडियन वेल्थ से इतना ग्रेट हुआ, इतना बड़ा हुआ है। वेल्थ ऑलवेज टेकन बाय द माइट एंड स्किल ऑफ द स्ट्रोंगर। क्योंकि जो वेल्थ है वो क्या करती है, जो ताकतवर है हमेशा उनसे ताकत, और जो स्ट्रोंगर है उनकी स्किल वगैरह सब कुछ ले लिया जाता है। सो ये विलियम डिग्बी ने यहाँ पर बोला था। सो जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, फर्स्ट इज व्हाट इज कोलोनियलिज्म एंड व्हाट ड्रू यूरोपियन पावर टू इंडिया, व्हाट वाज इंडियाज इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग बिफोर एंड आफ्टर द colonial period, and how did the British colonial domination of India impact the country। तो इन सब के आंसर हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो जो बिग क्वेश्चंस इसमें चैप्टर में आपके बन रहे हैं, फर्स्ट है व्हाट इज कोलोनियलिज्म। तो है क्या? सो मीन्स वन कंट्री रूलिंग अनदर टू यूज इट्स लैंड, people and resources for its own benefit. It often causes hardship for the people being ruled and changes their way of life. What drew Europeans' power to India? So Europeans came to India mainly for trade and profit. India was famous for spices, silk, cotton and indigo, which were in great demand in Europe. They wanted to find direct sea route to avoid Arab traders who charged high prices. Religious motives also played a role, as the Portuguese wanted to spread Christianity. Gradually, countries like Portugal, the Netherlands, France, and Britain competed to control Indian trade and power. What was India's economic and geopolitical standing before and during the colonial period? So, before the colonial era, India was made up of many kingdoms such as Mughal, Marathas, Rajputs, and southern rulers. These kingdoms were rich in trade, art, and culture. India was famous for its gems, textiles, and spices, which attracted traders from Europe, Arabia, and Southeast Asia. Indian rulers made their own decisions, signed treaties, and spread Indian culture, religion, and knowledge to other parts of Asia. During the colonial periods, the British changed India's economy to suit their needs. India was made to supply raw materials like cotton and indigo to Britain and to buy British goods. Local industries and craft declined. The British controlled India's defense, trade, and foreign affairs, and Indian soldiers were used to fight for British interest. How did the British colonial domination of India impact the country? So, the British drained India's wealth and used its natural resources for their own profit. Traditional Indian industries such as textile and handicraft were destroyed because cheap British goods flooded the markets. Farmers suffered due to heavy land taxes under system like the permanent settlement, which caused debt, poverty, and many famines. India's lost its political freedom as the British took control of administration, defense, and foreign affairs. English education created a small educated class but ignored Indian knowledge, culture, and languages. Railway, roads, and telegraph lines were built mainly to serve British trades and military needs. Although these developments later helped in India's unity and freedom movement, they were originally made to strengthen British control. सबसे पहले यहाँ पर जो है ओवरऑल टाइमलाइन दी गई है कि कहाँ से कैसे जो है
आए या किस तरह से शुरू हुआ। सो 1498 में क्या हुआ, वास्को डी गामा जो है कालीकट में आए थे। देन 1560 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंक्विजिशन एट गोवा। देन 1612 से 1619 तक क्या हुआ, दो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेडिंग के लिए सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता इन सारी जगहों पर एस्टेब्लिश हो गई थी, शुरू हो गई थी। सो इन द प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा कि वी सो द मराठाज कंसिडरेबली वीकन द मुगल एम्पायर। उन्होंने क्या किया था, मुगल एम्पायर को लगभग बहुत कमज़ोर कर दिया था। बिफोर दे देमसेल्व्स कम टू द ब्रिटिश फोर्सेस अर्ली इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश फोर्सेस थी, सेनाएं थे, उन्होंने जो मराठाज एम्पायर थे उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन खुद के ख़त्म होने से पहले उन्होंने क्या कर दिया था, मुगल एम्पायर को बहुत ज़्यादा जो है झुका दिया था। एंड येट मिलिट्री कैंपेन्स वर ओनली वन फैक्टर इन इंडिया बिकमिंग द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और ये जो बार बार इनके जो मिलिट्री कैंपेन्स हो रहे थे, बार बार जो युद्ध हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, ये ही इनका जो है एक मेन था, फैक्ट था, जिसकी वजह से ये लगातार जो है अपना ब्रिटिश रूल जो है यहाँ पर चला पा रहे थे। इंडीड द एम्पायर लार्जेस्ट कॉलोनी, और ये जो है इनकी कॉलोनी बहुत बड़ी बन गई थी। ओवरऑल पूरे इंडिया पे इन्होंने उस टाइम पे रूल किया था। द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। नाउ बिफोर वी गेट देयर, अब वहाँ जाने से पहले वी मस्ट स्टेप बैक अ लिटिल इन टाइम, तो हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। एंड कंसिडर द फिनोमिना ऑफ कॉलोनियलिज्म, और इसका जो है हमें फिनोमिना समझना पड़ेगा कि ये है क्या, कैसे चलता है, क्या मतलब इसका मतलब ही क्या है। So its usual definition is the practice where one country take control of another region। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक कंट्री किसी दूसरी जगह पर या दूसरी कंट्री पर रूल करती है, एंड इम्पोजिंग इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम, और अपने कल्चरल सिस्टम, अपनी रूल्स रेगुलेशन सब जो है जिस कंट्री पे उन्होंने रूल किया है उस पर लगाना शुरू कर देती है। दिस इज़ नॉट अ रिसेंट ओकरेंस, और ये कोई अभी का कोई चीज़ें नहीं है जो अभी समझ में आ रही है या पता चल रहा है। कोलोनलिज्म कैन बी ट्रेस्ड टू द टाइम ऑफ द ग्रेट एम्पायर इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE। ये जो है उस टाइम पर भी देखा जा सकता था, फर्स्ट जो मिलेनियम है BCE में, इन द फर्स्ट मिलेनियम इन CE, एंड द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम ऑल्सो involved the colonization of the territories converted to new फेथ्स। जबकि जो है जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जब आए थे तो उन्होंने भी अपने धर्म को, अपने फेथ्स को बढ़ाने के लिए, लोगों को इसमें कन्वर्ट करने के लिए सेम यही फॉर्मूला जो है कोलोनलिज्म वाला फॉर्मूला ही यूज़ किया था, दूसरी जगह पर रूल किया, देन अपने रूल्स को वहाँ पर इम्पोज किया, लोगों को बोला कि तुम्हें यही मानना है। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से टाइमलाइन आई है। 1674 में वहाँ था द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पौंडीचेरी में अपने ट्रेड के लिए वहाँ पर सेटअप हो गया था, ट्रेडिंग वगैरह के लिए। 1741 में डिफीट ऑफ द डच एट द बैटल ऑफ द कोलाचेल, तो यहाँ पर जो डच हैं वो हार गए थे युद्ध में। देन 1746 से 1763 तक जो कर्नाटिक वॉर थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में वो चली थी। 1757 जो बीच में इनके बीच में ही हुआ, ब्रिटिश विक्ट्री हुई थी, बैटल ऑफ पालसी का जो युद्ध हुआ था उसमें। देन 1770 से 1772 तक ब्रिटिश ग्रेट फेमाइन इन बंगाल, तो मतलब इन्होंने जो है बंगाल में अपना पहला कार्यकाल या जो है अकाल वगैरह वहाँ पर हुआ था वो हो गया। 1880 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी जिसमें मराठा पावर पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। देन 1829 से 1830 तक जो खासी अपब्रिंगिंग है, यानी कि अपराइजिंग है, ये आने लगे, जो प्रेजेंट डे में क्या है मेघालय है, वो थोड़ा सा ऊपर आने लगे। 1835 मार्कलिस मिनट ऑन इंडियाज़ एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन, वो सब आया। देन 1835 हो गया। देन 1848 से 49 फॉल ऑफ द सिख एम्पायर, सिख एम्पायर जो इस टाइम पर मतलब ओवरऑल जो ब्रिटिश की बात ही कर रहे हैं यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया था, पंजाब पे पूरा अपना रूल लगा दिया था, या जो भी उनके थे वहाँ पर पावर उनके पास आ गई थी और सिख एम्पायर गिर गया था उस टाइम तक।
1858 में द ब्रिटिश क्राउन एंड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश जो हेड थे, मतलब जो इंग्लैंड में रूल कर रहे थे, जो भी रानी थे या जो थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल किया और ब्रिटिश राज जो है उस टाइम पर शुरू हो गया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है आए थे जो लोग, वो ही इस पर राज कर रहे थे। देन जो ब्रिटिश क्राउन थे, यानी कि उस टाइम पे उनके जो राजा महाराजा थे, उन्होंने फिर रूल करना शुरू किया और इंडिया में ब्रिटिश राज शुरू हुआ। 1857 में क्या हुआ? द ग्रेट इंडियन रेबिलियन, जो विद्रोह हुआ था 1857 का, वो। नाउ बट द एज ऑफ colonialism यूजुअली रेफर टू यूरोप्स एक्सपेंशन फ्रॉम द 15th सेंचुरी ऑनवर्ड। लेकिन मोस्टली जो है इस टाइम पीरियड को, जो यूरोप का एक्सपेंशन हुआ था 15th सेंचुरी के बाद में, उससे ही जोड़ा जाता है, विच विद इन अ फ्यू सेंचुरीज एक्सटेंडेड टू लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कुछ ही टाइम पीरियड में वो बहुत ज़्यादा, दुनिया के बहुत ज़्यादा पार्ट में क्या हो गया था, फैल गया था। एज यू विल डिस्कवर इन हायर ग्रेड्स, जैसे तुम्हें पता चलेगा हायर ग्रेड्स में जाओगे तो इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। यूरोपियन पावर्स, इन पर्टिकुलर स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस एंड नीदरलैंड्स, सो इन सब को यूरोपियन कंट्रीज में काउंट किया गया था। Established colonies across Africa, Asia, the Americas, Australia and many Pacific islands after conquering large parts of those regions of the world. तो इन्होंने क्या किया था, हर एक जगह पर जो, मतलब ये इन सब ने, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने अपनी छोटी छोटी जगह बना ली थी, वहाँ पर कॉलोनीज बसा ली थी, यानी कि वहीं पर जाकर वो लोग रहते थे और वो ही लोग वहाँ पर पूरे उनके जो एरिया था उसको रूल करते थे। और मोस्टली कौन सा पार्ट था? अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे पार्ट्स पे इन्होंने क्या कर लिया था, इन पार्ट्स को जीत लिया था। और जितने भी, मतलब कॉन्करिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब दुनिया के लगभग सारे ही पार्ट्स को इन सब लोगों ने जीत लिया था और यहाँ पर ये लोग रूल करते थे, अपनी सारी चीज़ें यहाँ बताते थे, अपने रूल वगैरह जो थे वो यहाँ पर भी इनको फॉलो करने पड़ते थे। ओफन द कॉन्क्वेस्ट वर अचीव्ड थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स, तो जब वो उस चीज़ को जीत लेते थे लड़ाई वगैरह युद्ध करके, डेट इन्वॉल्व द मैस्करे और एनस्लेवमेंट ऑफ नेटिव पॉपुलेशन, जहाँ पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा मारकाट होती थी, लोगों को मारा जाता था, या फिर एनस्लेवमेंट यानी कि लोगों को स्लेव बनाया जाता था, दास गुलाम बना लिया जाता था, जो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन होती थी, जो वहाँ के लोग होते थे उनको। वट इम्पेल्ड दोज नेशन टू अंडरटेक सच कैंपेन, तो किसकी वजह से उन्होंने जो है इस तरह के एक्शंस लिए या जो है चीज़ें उन्होंने शुरू की? पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन यूरोपियन पावर क्रिएटेड अ रेस फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अब क्या हो रहा था, यूरोपियन पावर्स के बीच में, यानी कि जो ऊपर जो कंट्रीज दिखाई गई थी, इनके बीच में एक दूसरे के साथ एक पॉलिटिकल कंपटीशन टाइप शुरू हो गया था कि किसकी टेरिटरी ज़्यादा बड़ी होगी, किसके पास ज़्यादा बड़ा लैंड रहेगा, ताकि वो पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस दिखा सके, अपनी पावर दिखा सके। टेरिटोरियल एक्सपेंशन हैड ओबियस इकोनॉमिक एडवांटेजेस। अब जिसकी टेरिटरी ज़्यादा होगी, जिसके पास ज़्यादा लैंड होगा, तो उसकी इकोनॉमिक भी ज़्यादा होगी, एडवांटेज मिलेंगे। जैसे अब इंडिया पे जिसका रूल है, तो इंडिया की सारी वेल्थ वो अपने पास लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके इकोनॉमिक एडवांटेज भी ज़्यादा थे। एक्सेस टू न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें जो है मिलेंगे, जो रिसोर्सेज में भी उनके कंट्री में नहीं है, वो रिसोर्सेज इन्हें दूसरी कंट्रीज़ में जो इन्होंने जीते हैं वहाँ पर मिल सकते हैं। नई मार्केट्स मिलेंगी, नए ट्रेड रूट्स मिलेंगे, एंड ओपन पैलेंडर एज वी विल सी, और बहुत ज़्यादा जो है पैसे भी मिलते थे, जो लूट वगैरह ये करते थे, जो कि हम अब पढ़ेंगे। कन्वर्टिंग इंडिजीनियस पॉपुलेशन टू क्रिश्चियनिटी, और साथ में जो है जो वहाँ के लोग होते थे, जिस नई जगह पर ये जाते थे, उन लोगों को अपने धर्म में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना वॉज अनदर पावरफुल मोटिवेशन। अ लेसर वन बट सिग्निफिकेंट नॉनदलेस वॉज साइंटिफिक एनक्वायर, द डिज़ायर टू एक्सप्लोर अननोन लैंड्स टू एज टू accumulate knowledge of the planet, geography and natural। अ लेसर नोन, एक ऐसी जगह जिसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, सिग्निफिकेंट नॉनदलेस वो साइंटिफिक इंक्वायरी, द डिज़ायर टू एक्सप्लोर अननोन लैंड, मतलब साइंटिफिकली भी वो वहाँ जाना चाहते थे, एक्सप्लोर करना चाहते थे, उनकी जो डिज़ायर होती थी कि यहाँ ये जो लैंड है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उसमें क्या क्या चीज़ें उन्हें मिल सकती है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, प्लैनेट की ज्योग्राफी एंड नेचुरल हिस्ट्री जानने के लिए, वो सब ये चीज़ें उसके लिए भी करते थे। वाइल colonizers often claimed they had the civilizing mission of bringing progress to the colonized people,
हु वर ऑफन डेमोनाइज्ड। अब डेमोनाइज का मीन्स क्या है? टू फाल्सली पोर्ट्रे एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ वेरी नेगेटिव लाइट। तो यहाँ पर ये अपने आप को क्या दिखाते, ये जो जितने भी लोग आते थे ये क्लेम करते थे कि हम लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं, उन्हें अच्छे तरीके से रहना सिखा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोलोनाइज बना रहे हैं, उन्हें अच्छा बना रहे हैं, जबकि वो मोस्टली क्या है, मतलब किसी को भी डेमोनाइज्ड यहाँ पर बोला गया, यानी कि एक ग्रुप को या किसी भी इंसान को जब आप नेगेटिव वे में ट्रीट करते हैं, बताते हैं, तो वो यहाँ पर क्या बोलते थे कि हम उन लोगों के पास कोई लाइफ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, तो हम उन्हें थोड़ा अच्छा जीवन देना चाहते हैं, एज सेवेज प्रिमेटिव एंड बार्बरिक। द रियलिटी वॉज वेरी डिफरेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि वो जंगली हैं, आदिम हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, ये शब्द बोलकर उन्हें क्या बोला जाता था, उनको नेगेटिवली ट्रीट किया जाता था कि इन लोगों को कुछ नहीं आता है, सब हमें आता है, हम इनकी ज़िंदगी को सुधार रहे हैं, इस तरह से वो चीज़ें बताते थे जब भी वो दूसरी जगह पर रूल करते थे। लेकिन जो रियलिटी है वो बहुत अलग थी। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, लोग अपनी इंडिपेंडेंस खो देते थे, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता था उनके रिसोर्सेज का बाय द कोलोनाइजर, जो भी कोलोनाइजर्स होते थे वो उनकी सारी रिसोर्सेज ले लेते थे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जिस तरह से वो रहते थे, ट्रेडिशनल वेज जो थे उनके, वो सब खत्म कर दिए जाते थे। एंड इम्पोजिंग ऑफ फॉरेन कल्चरल वैल्यूज़, और जो उनकी जो कल्चरल वैल्यूज़ थी उनको इम्पोज किया जाता था कि तुम्हें इसी तरह से रहना है। इट इज़ ट्रू दैट द कोलोनिकल एज ब्रोड द वर्ल्ड टुगेदर। अब ये सही है कि कॉलोनिकल एज के बाद जो है दुनिया एक साथ आई, क्योंकि हर जगह जब ये 5-6 कंट्रीज़ ही रूल कर रही हैं तो हर जगह से वो सब लोग एक साथ हो गए। सो अ रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में ग्रोथ हुई, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हुई, बट द बेनिफिट वर मोस्टली फॉर द कोलोनाइजर। लेकिन बेनिफिट किसको हुआ? जो वो 5 से 6 कंट्री हमने पढ़ी जो हर जगह पे रूल करना चाहती थी, यूरोपियन पावर जिन्हें बोला गया, किनको मिला? फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को मिला। मैनी हिस्टोरिकल स्टडीज़ हैव डॉक्यूमेंटेड द इमेंस हार्डशिप दैट द कोलोनाइज्ड पीपल हैड टू एंड्योर। और बहुत सारी हिस्ट्री स्टडीज़ हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि लिखा गया है कि जो लोगों को कोलोनाइज्ड किया जाता था, यानी कि जिन लोगों पे ये लोग आके राज करते थे, आकर उन पे रूल करते थे, उनको कितनी प्रॉब्लम, हार्डशिप एंड्योर करनी पड़ती थी, क्या क्या चीज़ें उन्हें यहाँ पर सहनी पड़ती थी। ये कार्टून यहाँ पर दिखाया गया है, ब्रिटिश बिजनेस है, मैग्नेट स्टैंडिंग अफ्रीका वाइल ही होल्ड्स अ टेलीग्राफ वायर। सो एक टेलीग्राफ वायर इन्होंने दिखाया है जिसमें ये सिर्फ ये दिखाना चाहते कि इनका जो है मतलब रूल यहाँ से यहाँ तक, वो बीच में खड़े हैं और हर जगह इनका रूल चलेगा और उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम होंगे। नाउ व्हाट डू यू थिंक द कार्टून इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस? Keep in the mind that the telegraph, which permitted instant communication for the first time, was then a recent invention. Analyze different element of the drawing. So ये पिक्चर हमने अभी देखी थी। Before the telegraph, message took weeks or months to travel between countries. The telegraph made communication very fast, and people were amazed that messages could now be sent faster than the wind. The cartoon may show a person in London sending a message and somehow in India receiving it instantly. तो मतलब किसी के पास मैसेज भेज रहा है, वो यही चीज़ दिखा रहा है कि उस टाइम पे जो इन्वेंशन हुए थे वो किस तरह से चीज़ों को हेल्प कर रहे थे। इट शोज हाउ द टेलीग्राफ कनेक्टेड फार अवे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड मेड द अर्थ सीम स्मॉलर। फॉर द ब्रिटिश, द टेलीग्राफ हेल्प देम कंट्रोल देयर कॉलोनीज ईजिली बाय सेंडिंग ऑर्डर क्विकली फ्रॉम लंडन टू इंडिया। सो उनके लिए भी ईजी हो गया रूल करना, ऑर्डर्स देना, सब चीज़ें करना। नाउ इन मैनी ऑफ द कोलोनाइज्ड रीजन्स रेजिस्टेंस बिल्ट अप अगेंस्ट द कोलोनाइजर। अब जितने भी ये कोलोनाइज रीजन थे, यानी कि जहाँ पे ये सब लोग रूल करते थे, अब क्या हो गया? रेजिस्टेंस होने लगा, लोग जो उनका विद्रोह करने लगे, जो उन पे राज करते थे उनके लिए। द फिनोमेन ऑफ कोलोनलिज्म डिनाइड इन द मिड 20th सेंचुरी। सो 20th सेंचुरी के मिड तक क्या हुआ? ये चीज़ लगभग जो है ख़त्म हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, खास करके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। मैनी फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू रैपिड वर्ल्ड वाइड डीकोलोनाइजेशन। तो बहुत सारे फैक्टर्स हुए, इसका ये नहीं कि सिर्फ एक ही था, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से एक साथ ही जो है हर जगह पूरी दुनिया में से ये चीज़ हट गई थी। विद मोस्ट कोलोनलाइज कंट्री अटेंडिंग इंडिपेंडेंस, और जितनी भी कंट्रीज़ थी जिनमें ये लोग रूल करते थे वो इंडिपेंडेंट अपना लेने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे। हियर हाउ वी विल
वी विल फोकस ऑन द स्पेशल केस ऑफ इंडिया, और हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, इंडिया के बारे में। यूरोपियंस इन इंडिया, तो जब इंडिया में वो थे, इंडिया ट्रेडेड विद द ग्रीक एंड द रोमन्स ओवर 2 मिलेनिया अगो। सो लगभग इतने टाइम तक इंडिया ने क्या किया था, ग्रीक और रोमन के साथ ट्रेड किया था। इंडियन गुड्स, स्पाइसेस, कॉटन, आइवरी, जेम्स, सैंडलवुड, teak wood, wood steel, among other commodities were highly sought after in the Mediterranean world. सो ये सारी चीज़ें जो यहाँ बताई गई, इंडिया जो मसाले वगैरह, कपास या हाथी दांत या जो भी उन्हें चीज़ें मिलती थी, जेम्स वगैरह, ये सैंडलवुड, जो भी लकड़ी वगैरह जो सिर्फ यहीं थी, तो वो चीज़ें जो हैं क्या हो गया, वहाँ पर जो दूसरी वर्ल्ड की जो दूसरी जगह थी, मेडिटेरियन जो एरिया था, वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी। वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद करने लगे। Until the 16th century CE, when European power began sailing to Indian subcontinent, इंडिया वॉज अ वाइब्रेंट इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर हाउस। कब तक, 16 सेंचुरी तक। 16 सेंचुरी के बाद क्या हुआ, जो यूरोपियन पावर्स थी वो आई और मतलब इंडिया के लिए वो आने लगी, और यहाँ पर आकर, उससे पहले तक इंडिया क्या था, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी थी और कल्चरल पावर हाउस था। जब यूरोपियन पावर को इसके बारे में पता लगा तो वो यहाँ पर आने लगे, क्योंकि उन्हें यहाँ आकर सबसे पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए, सिर्फ एज अ कंपनी की हमें ट्रेड करना है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर रूल कर लिया था। हिस्टोरिकल एस्टिमेट बाय इकोनॉमिस्ट Angus Madison in particular suggest that India contributed at least 1/4 of the world GDP during this whole period. सो जितनी ओवरऑल पूरे जो वर्ल्ड की जितनी जीडीपी थी उसकी 1/4 जो है उस टाइम पे इंडिया कंट्रीब्यूट करता था। जीडीपी क्या है, एब्रीवेशन होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस अ कंट्री और फॉर द वर्ल्ड इन दिस केस प्रोड्यूस इन अ ईयर, कि एक साल में कितना ग्रोथ हुआ, कितना जो है पैसा बना, या ओवरऑल जो है, तो जितना पूरी दुनिया बनाती थी उसका 1/4 जो है अकेला इंडिया से जाता था, मेकिंग इट वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्लोबली अलोंगसाइड चाइना। तो इसे जो है चाइना के साथ ही एक जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी बताया गया उस टाइम पे, या माना गया। हुज कंट्रीब्यूशन वॉज ऑफ द सेम ऑर्डर, चाइना का भी सेम था और इंडिया का भी सेम था। इट इज़ रिमार्केबल डैट फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, 16th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, मैनी यूरोपियन ट्रेवलर टू इंडिया described her as flourishing and noted her manufacturing capabilities, diverse agriculture output, and extensive internal as well as external trading network. तो जो भी 16th सेंचुरी के बाद जो भी यूरोपियन यहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने इसको जो है सबसे फ्लोरिशिंग, यानी कि मतलब सबसे ज़्यादा चीज़ें जो यहाँ पर हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ जो यहाँ पर लोग जिस तरह से चीज़ों को बनाते हैं, एग्रीकल्चर जो अलग अलग तरह का है, डाइवर्स है, वो देखा, और इंटरनल और एक्सटर्नल जो इनका ट्रेडिंग नेटवर्क था वो सब उनने देखा, और वो सब उन्होंने अपने बुक्स में भी बताया, डिस्क्राइब किया उसे। हाउएवर दिस इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑल्सो मेड इंडिया एन अट्रैक्टिव टारगेट फॉर यूरोपियन कोलोनिकल एम्बिशन। अब इतनी प्रोस्पेरिटी देख के इंडिया का, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मीन्स मेन वही है वेल्थ, इतना वेल्थ देखने के बाद जो यूरोपियन कॉलोनिकल एम्बिशन मतलब पावर्स थी, उनका जो मेन टारगेट जो है वो इंडिया हो गया था। सबका यही था कि हमें इंडिया पे रूल करना है। लेट अस सर्वे यूरोप फर्स्ट कॉलोनिकल पावर इन इंडिया। तो सबसे पहले हम पहली पावर के बारे में बात करते हैं जो सबसे पहले आई, वो कौन थे, द पुर्तगालीज, कॉमर्स एंड एट्रोसिटीज। Now, the Portuguese explorer and navigator Vasco da Gama arrival at कप्पड़, ये कप्पड़ में आए थे, नियर कोझिकोड इन केरला, केरला के पास जो है, इन May 1498 पेव्ड द वे फॉर द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन कोलोनाइजेशन इन इंडिया। जिन्होंने जो है आगे जो कोलोनाइजेशन होने वाला था इंडिया का, मतलब उनके लिए एक रास्ता खोल दिया था इंडिया के बारे में, इंडिया का जो सी वे पता करने के बारे में कि यहाँ से इंडिया में जाया जा सकता है। तो एक जो है उनके लिए, यूरोपियन पावर्स के लिए रास्ता उन्होंने बना दिया था। नाउ थ्रो ही वॉज वेल रिसीव्ड, हिज एग्रेसिव वे फेल्ड टू एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद द लोकल रूलर। अब उसको जो है अच्छे से ट्रीट किया गया था यहाँ पर, लेकिन उसका जो तरीका था, ठीक है, मतलब वो जो है बहुत ज़्यादा क्या थे, एग्रेसिव थे, उसकी वजह से जो लोग थे वहाँ के लोकल रूलर थे वो क्या हो गए, उनके साथ अच्छे से फ्रेंडली रिलेशनशिप वो नहीं बना पाए।
ड्यूरिंग हिज सेकेंड वॉयस, अब जो वो सेकेंड बार यहाँ पर आए 4 ईयर लेटर, ही सीज्ड, टॉर्चर्ड एंड किल्ड इंडियन मर्चेंट्स। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया, उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और बहुत सारे जो इंडियन मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्हें मार दिया। एंड बोम बैड कालीकट फ्रॉम द सी, और जो कालीकट वाली जो बंदरगाह थी या फिर जो सी पोर्ट था, वहाँ पे उन्होंने किया बमबारी भी की। द पुर्तगालीज कैप्चर्ड स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स, और जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे इंक्लूडिंग गोवा, उनको उन्होंने क्या कर लिया, पुर्तगालीज ने कैप्चर कर लिया, यानी कि उस पर अब वो खुद से ट्रेड करने लगे। विच बिकम द कैपिटल ऑफ देयर कॉलोनी इन इंडिया, और गोवा ही उनकी क्या हो गई, कैपिटल भी बनी जब उन्होंने अपनी कॉलोनी वहाँ पे शुरू की। तो एज वेल एज सेवरल ट्रेडिंग पोस्ट अलोंग द मालाबार एंड कोरामंडल कोस्ट, और साथ में ही वो जो मालाबार और कोरामंडल कोस्ट है, वहाँ से भी कुछ जो है उन्होंने अपने पोस्ट जो है वहाँ भी बना लिए थे ट्रेडिंग करने के लिए। द पुर्तगालीज इम्प्लीमेंटेड अ सिस्टम नोन एज कार्टाज, यानी कि एक पास सिस्टम भी उन्होंने बनाया था, जो कि अभी हमने लास्ट मराठा वाले चैप्टर में देखा कि मराठास ने क्या किया, इनके साथ युद्ध करके इनसे ही पास मांगने लगे थे कि अगर तुम आते हो तो पास तुम्हें हमें देना पड़ेगा, बिकॉज आप हमारी कंट्री में आ रहे हो, हम आपकी कंट्री में नहीं है। तो इन्होंने कार्टाज का जो एक सिस्टम बना लिया था, इसमें क्या था, रिक्वायरिंग ऑल शिप्स इन द अरेबियन सी टू परचेज पुर्तगालीज परमिट फॉर नेविगेशन। तो अरेबियन सी में जो भी शिप्स आएंगी वो क्या होगा, उन्हें नेविगेशन के लिए ये परमिट की ज़रूरत होगी, अदरवाइज वो जा नहीं सकते, और इसके लिए इन्हें इसे जो है परचेज ही करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। शिप विदाउट दीज परमिट वॉज सीज्ड, अगर किसी शिप के पास ये परमिट नहीं होता तो उन्हें सीज कर लिया जाता था, पकड़ लिया जाता था। This naval dominance allowed them to monopolize the spice trade between India and Europe for nearly a century. अब जो इनका ये ट्रेड था, मोनोपोलाइज था, यानी कि नेवी वाला मोस्टली इन्हीं के पास ज़्यादा था, नेवल आर्म फोर्स, तो इन्होंने इन सारी चीज़ को अकेला इन्हीं का अधिकार था। मोनोपोलाइज मीन्स एक अधिकार आप बोल सकते हैं, तो पूरा अधिकार इनका ही था उस पर, सी वाले पे। तो इन्होंने क्या कर दिया था, पूरे को एक तरह से स्पाइस का जो ट्रेड होता था इंडिया और यूरोप के बीच में, उन पे इनका अकेले का डोमिनेंस हो गया था, अलोंग साइड कमर्शियल एक्सप्लोनेशन, और लगभग ये जो है सेंचुरी तक रहा। और ये जो कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन इनका चलता रहा, द पुर्तगालीज प्रेजेंस इन वेस्टर्न इंडिया वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीजियस persecution. In Goa, they established the Inquisition. Inquisition means a tribunal set up by the Roman Catholic Church to judge heretics. अब Christians suspected to holding opinion contrary to the church doctrine. Over some 600 years across Europe, many thousands of supposed heretic were tortured and executed. अब यहाँ पर क्या हुआ, ये साथ में लोगों के साथ, जो गोवा में जो लोग रहते थे उनके साथ जो है ये रिलीजियस परक्यूशन, यानी कि लोगों को जो है मारने लगे रिलीजियसली, अब कि तुम्हारा दूसरा धर्म है, हमारे वाला नहीं है, तो लोगों को उस चीज़ के लिए वो मारने लगे थे, और उन्हें बोलने लगे थे, अपनी एक जो है चर्च का, कैथोलिक चर्च जो है उन्होंने वहाँ पर बना दी थी, और जो भी लोग होते थे इन 1560 में उन्होंने बनाए, विच सेवरली persecuted Hindu, Muslim, Jews and Christian converts suspected for practicing their original faith. तो यहाँ पर 1560 में क्या हुआ, जो हिंदू, मुस्लिम, यहूदी या जो भी ईसाई थे, जिन्होंने अपना जो है रिलीजन तो चेंज कर लिया था, कन्वर्ट तो हो गया था, लेकिन वो क्या कर रहे थे, अपने ओरिजिनल फेथ पर, यानी कि वो हिंदू है तो अपने देवताओं की ही सीक्रेटली पूजा करते थे, ठीक है, इनके सामने नहीं। सेम मुस्लिम के लिए था, सेम जूस के लिए था। तो जब उनके इसके बारे में पता लगा कि वो ऐसे करते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें जो है बहुत ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट दी जाती थी। अब यहाँ पर इससे पहले एक इनके बारे में आया है, अ फ्यू सेंचुरीज अगो द पोर्ट टाउन ऑफ उल्लाल का पोर्ट टाउन है इन प्रेजेंट डे जो सदर्न कर्नाटका है, वो वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट था, कंट्रोल लेड बाय रानी अबक्का, और इसको कंट्रोल कौन करती थी, रानी अबक्का। रानी अबक्का 1 इन द लेटर हाफ ऑफ द 16th century द पुर्तगालीज रैपिडली अटेम्प्ट to take it over, but Rani Abakka I formed strategic alliance with neighboring kingdoms and thwarted their attempts. तो जो पुर्तगालीज थे वो बार बार अटेम्प्ट करते रहे, बार बार इन पे युद्ध करते रहे,
कि ये जो है मतलब यहाँ का जो ओवरऑल जो इनका पोर्ट का है इनके पास अधिकार आ जाए, लेकिन रानी अब्बका जो है जो उनके आसपास के किंगडम थे उनके साथ अलायंस करके उन्होंने हर बार उनके अटेम्प्ट को फेल कर दिया था। सी वॉज इवेंचुअली कैप्चर्ड एंड डाइड फाइटिंग इन द प्रिजन। तो लास्ट में उन्होंने उन्हें पकड़ लिया था, और मतलब इन रानी अब्बका को पकड़ लिया गया था, और उन्हें जो है जो लड़ाई करते हुए फाइट करते हुए ही वो जब उन्हें जेल में डाला गया तो वो मर गई थी। हर सक्सेसर रानी अब्बका टू is reported to have created fireballs out of coconut shells and set several ships of the Portuguese Navy on fire। अब रानी अब्बका टू जो इनकी सक्सेसर थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कोकोनट शेल्स होते हैं उनको फायर बोल्स की तरह ट्रीट किया, और जो पुर्तगालीज के शिप आते थे, नेवी आती थी, शिप आते थे, उनमें वो डालकर बहुत सारी शिप्स को उन्होंने जला दिया था। देयर इंस्पिरेशनल स्टोरीज आर रिमेंबर्ड इवन टुडे थ्रू द यक्ष गंगा, अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस धर्मा। और इनकी ये जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं ये आज भी जो है याद की जाती है, जो यक्ष गान होता है उससे एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है उनका, उसके रूप में। नाउ तो ये लोग जो है जो क्रिश्चियनिटी में चेंज नहीं होते थे या चेंज हो गए हैं फिर भी सीक्रेटली अपना जो है फेथ को वो फॉलो कर रहे हैं, तो उनके साथ या तो उन्हें मार दिया जाता था या फिर बहुत बुरी तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता था। Now such persecutions was accompanied by forced conversion। अब ये जो किया गया लोगों को मोस्टली फोर्स कन्वर्जन था, लोगों को ज़बरदस्ती उनको जो है चेंज करवाया गया था, कन्वर्ट किया गया था। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी हिंदू टेम्पल्स, और बहुत ज़्यादा हिंदू टेम्पल्स को भी तोड़ा गया। अमंग अदर फॉर्म ऑफ अब्यूज़ ऑफ नेटिव पॉपुलेशन, और बहुत जो है अलग अलग तरीके से वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको अब्यूज़ किया गया, ठीक है, उनके साथ मतलब गलत तरीके से व्यवहार किया गया। द गोवा इंक्विजिशन वॉज ओनली अबोलिश्ड इन 1812। तो 1812 में जो है ये गोवा का जो इंक्विजिशन था वो ख़त्म हो गया था। नाउ द डच, पुर्तगालीज आए, उसके बाद आए डच, कॉमर्स एंड कॉम्पिटिशन। द डच अराइव्ड इन इंडिया इन द अर्ली 17th century एंड अनलाइक द पुर्तगालीज फोकस प्राइमरली ऑन कमर्शियल डोमिनेंस। अब ये पुर्तगालीज की तरह नहीं थे, उनका पहला क्या था, कमर्शियल डोमिनेंस, यानी कि ओवरऑल जो चीज़ें हैं, और पर्टिकुलरली उसमें भी कौन सा, स्पाइस ट्रेड, उसमें जो है वो अपना डोमिनेंस देना चाहते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पाइस कहाँ पर था, स्पाइस वगैरह सबसे ज़्यादा मिलता था इंडिया में, तो उसी ट्रेड को वो अपना इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना चाहते थे। दे एस्टेब्लिश्ड अ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई विच ट्रेडिंग पोस्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो हर एक इनके जो है ट्रेडिंग पोस्ट थे बहुत ज़्यादा पार्ट्स में इंडिया पे बनाए गए, इंक्लूडिंग ऑन द वेस्ट कोस्ट में ही बना सूरत, भरूच, कोचिन, and on the east coast Nagapattinam and Masulipatam इन प्रेजेंट डे क्या है, मछलीपट्टनम। तो इन सारी जगह पर इन्होंने अपने अलग अलग पोस्ट जो है जगहें बनाई। देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रेजेंस वॉज इन द मालाबार रीजन ऑफ केरला, जो सबसे इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इनका रहा वो रहा केरला में मालाबार रीजन पे, वेयर दे डिस्प्लेड द पुर्तगालीज फ्रॉम सेवरल ट्रेडिंग सेंटर, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, पुर्तगालीज को बहुत जो कई ट्रेडिंग सेंटर जो उनके थे पुर्तगालीज के, उनको उन्होंने वहाँ से हटा दिया था और अपना रूल वहाँ पर किया था। तो ये पिक्चर दिखाई गई है, सरेंडर ऑफ डच फोर्स टू किंग मर्थाना वर्मा ऑफ तरानाकोर आफ्टर द बैटल ऑफ कोचेल। तो कोचेल की जो युद्ध हुआ था उसके बाद में जो डच हैं उन्होंने इनके सामने सरेंडर कर दिया था, वो पिक्चर यहाँ दिखाई गई है। नाउ द डच प्रेजेंस इन इंडिया वॉज अल्टीमेटली जो है लिमिटेड रहा, ज़्यादा नहीं था। इट डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली आफ्टर देयर डिफीट एट द बैटल ऑफ कोलाचेल में सॉरी, जब इनकी बैटल हुई और जब ये हार गए तो इतना ही इनका था, ज़्यादा नहीं रहा। इन 1741 वेयर द फोर्सेज ऑफ, अब कौन सी फोर्स थी, त्रावणकोर अंडर किंग मर्थानंदा वर्मा डिसिसिवली डिफीटेड द डच बोथ ऑन लैंड एंड द सी। तो ये जो इनके राजा थे, राजा मार्तंड वर्मा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको डच को दोनों जगह लैंड और सी दोनों में ही हरा दिया था। दिस बैटल वॉज अ रेयर इंस्टेंस ऑफ एन एशियन पावर सक्सेसफुली रिबेलिंग अ यूरोपियन कॉलोनिकल फोर्स। अब इस बैटल, ये एक रेयर इंस्टेंस था, एक रेयर चीज़ थी जो देखने को मिली कि किसी एशियन पावर ने सक्सेसफुली जो है यूरोपियन कॉलोनिकल फोर्स को हरा दिया है, रिपेल कर दिया, उन्हें यहाँ से निकाल दिया है।
अब पहले पुर्तगालीज आए, डच आए, उसके बाद कौन आ गए? द फ्रेंच। कॉलोनिकल एम्बिशन। द फ्रेंच एंटर्ड इंडिया लेटर, वो बाद में आई, एस्टेब्लिशिंग देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत इन 1688। सबसे पहले उन्होंने अपनी पोस्ट जो है कहाँ पर लगाई? 1688 में, सूरत में। एंड सब्सिक्वेंटली एट पोंडिचेरी, उसके बाद जो आज का पुडुचेरी है वहाँ पर अपनी दूसरी, इन 1674। वेयर दे एस्टेब्लिश देयर ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ पर उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई। एंड डेवलप्ड एम्बिशियस प्लान टू एस्टेब्लिश अ फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया, और उसके बाद जो उनका प्लान था कि जो है एक फ्रेंच एम्पायर को ही हम इंडिया में पूरा जो है एस्टेब्लिश कर देंगे, बना देंगे। नाउ डुप्लेक्स, हु सर्व्ड अ गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच इंडिया फ्रॉम 1742 टू 1754, pioneered several colonial strategies that would later be adopted by the British। तो उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई थी कि किस तरह से जो है इंडिया पे ये लोग रूल करेंगे या कैसे इनकी चीज़ें चलेंगी, और ये जो इन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई इसमें से कुछ जो है बाद में ब्रिटिश ने भी अडोप्ट की थी। इन पर्टिकुलर ही ट्रेंड इंडियन सोल्जर्स इन यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक्स, क्रिएटिंग डिसिप्लिन इन्फेंट्री सोल्जर्स नोन एज सिपाही। तो इन्होंने क्या किया? इंडियन सोल्जर्स को ट्रेन किया यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक के अकॉर्डिंग, और उनको जो है सोल्जर की तरह उसमें जो है जॉब भी दी गई, जिन्हें जो है उन्होंने क्या बोला? सिपाही बोला। डुप्लेक्स ऑल्सो डेवलप द स्ट्रेटेजीज ऑफ इनडायरेक्ट रूल थ्रू पपेट्स इंडियन रूलर। उसने दूसरा क्या किया? इनडायरेक्ट रूल किया। कैसे? उन्होंने जो इंडियन रूलर्स थे उनको पैसे दे दिया किसी भी तरह से कि तुम्हें इतना मिलता रहेगा, लेकिन तुम करोगे वो ही जो हम बोलेंगे। तो पपेट की तरह जो इंडियन रूलर्स थे उनको काम करते थे, और इनडायरेक्ट रूल किनका होता था? फ्रेंच का ही होता था। हु वर इंस्टॉल्ड थ्रू इंटरवेंशन इन लोकल सक्सेशन डिस्प्यूट्स। और ये जब मोस्टली कब होता था? जब लोकल सक्सेशन होते थे कि अब मैं राजा बनूंगा या उसके बाद राजा कौन बनेगा, तो उनके बीच में जो डिस्प्यूट होते थे तो उनके पास जाकर ये बोल देते थे कि मैं तुझे राजा बना दूंगा, लेकिन उसके बाद काम तुझे मेरे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी इन्होंने रूल किया। द फ्रेंच कोलोनिकल एम्बिशन इन इंडिया वर अल्टीमेटली चेक ड्यूरिंग द कर्नाटिक वॉर। तो जब कर्नाटिक वॉर हुई थी उस टाइम पे इनके बीच का जो फ्रेंच कोलोनिकल था इंडिया का, उसके बाद यहाँ पता चला अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया कहाँ? बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इनके बीच में जब लड़ाई हुई तो इसके बारे में पता चलता है। डिस्पाइट इनिशियल सक्सेस अंडर डुप्लेक्स, अब स्टार्टिंग में तो उन्हें सक्सेस मिली। हु कैप्चर्ड मद्रास, जो कि प्रेजेंट डे चेन्नई है, जिनको इन 1746 में इन्होंने पहले मद्रास को अपने अंडर लिया, जो कि आज के टाइम का चेन्नई है। द फ्रेंच अल्टीमेटली lost ground to the British and their colony was reduced to Pondicherry and a few smaller enclaves। लेकिन फ्रांस क्या हुआ? अल्टीमेटली लास्ट में जो है ब्रिटिश से हार गया, और उनकी कॉलोनी सिर्फ जो पौंडीचेरी और कुछ छोटे मोटे एरियाज में ही रह गई थी। लाइक द डच and unlike the Portuguese, the French colonial power did not much intervene in India's social and rebellious life। जैसे कि डच ने किया था पुर्तगालीज के अलावा, पुर्तगालीज ने तो ये किया था कि उनका फेथ चेंज करना है, उनको क्रिश्चियनिटी में लेकर आना है। सो उनकी तरह ना करके, डच की तरह करके, पुर्तगालीज की तरह ना करके, फ्रेंच ने जो है उनके इंडियन जो सोशल और रिलीजियस चीज़ें थी उनमें ज़्यादा इंटरवेन नहीं किया था। अ रेयर एक्सपेंशन वॉज द डिस्ट्रक्शन in 1748 of Pondicherry's large वेदापुरीश्वरवन टेम्पल। अब इसका जो है एक्सपेंशन तो हर जगह देखने को मिलता है। जो 1748 में जो इनका वेदापुरीश्वरवन टेम्पल था उसको इन्होंने पूरी तरह तोड़ दिया था, और ये ऑर्डर दिया था डुप्लेक्स ने ऑन द प्रेसिडेंट्स रिक्वेस्ट ऑफ पौंडीचेरी जीसस प्रिस्ट, क्योंकि उनके जो प्रिस्ट थे उनके जो चर्च के, उन्होंने ये बोला था, एंड डुप्लेक्स की जो खुद की वाइफ थी वो, तो उनकी रिक्वेस्ट की वजह से उन्होंने इस टेम्पल को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। विद द व्यू ऑफ असर्टिंग द डोमिनेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पर ज़्यादातर कौन से लोग रहे? क्रिश्चियनिटी, उसका डोमिनेंस यहाँ पर बना रहे। जनरली हाउएवर द फ्रेंच हैड टू बी कंटेंट विद अ मोडेस्ट अमाउंट ऑफ ट्रेड विद इंडिया। लेकिन मोस्टली क्या था, जो फ्रेंच थे या जो भी फ्रांसीसी आए थे उनका क्या था, मोस्टली वो अपने ट्रेड तक ही खुश थे। उन्हें सिर्फ ट्रेड पे अपना अधिकार चाहिए था ताकि उनके पास पैसा आ सके, वेल्थ आ सके, तो उन्हें उसी में अपना डोमिनेंस चाहिए था। ज़्यादा जगहों पे उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। ये यहाँ पर है 1764 प्लान
ऑफ पोंडिचेरी, शोइंग द सिटी एंड क्लोज द फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन से पूरा उसको बंद किया गया है, मतलब एक तरह से उसकी सिक्योरिटी के लिए। एंड ग्रिड प्लानिंग दिखाई जा रही है, लार्ज स्ट्रक्चर दिखाई जा रहा है जो कि सी को फेस कर रहा है ये। एट द बॉटम वॉज द फोर्ट एंड द टॉप ऑफ द प्लान पॉइंट्स टू द वेस्ट। उसके बाद आता है एंटर द ब्रिटिश। तो आज हम करेंगे इतना ही, क्योंकि ब्रिटिश वाला उसके बाद में बहुत पड़ा है, तो वो हम करेंगे कल। अभी तक अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।